Welcome to this twin flame reading. This is going to be a special reading because I am setting the intention for this reading to be an almost personal reading. Okay, so let us see how this goes along. Of course, this is a pick a pile reading. So before you will notice that there are three lotuses which are of three different colors. Okay, so the first lotus is white, second lotus is pink, and the third lotus is a blue lotus. So just take in a deep breath, relax your shoulders, just think of your person who you want to ask about, who you want to know about, and just take their name and pick any one lotus. And I am going to be doing a full reading as such, their current energies, their head space, their heart space, what is going on in their current reality, and what are the messages that they want to send across to you at this point of time. So this is going to be an almost personal reading. This is a sneak peek into what you can expect when you get a paid session, a paid reading. Of course, that would be more elaborate, but I just felt like, hi, hello everyone. So I just felt like doing this reading today. So these are the three flowers. Just pick any one that you feel called out to. I am going to be taking the first white lotus, this one. If you pick this white lotus, let us see what are the current energies of your person. So from the first deck, I have Ready, I have Scars, Shivangi saying Chandel. Oh, immediately cards just coming out very quickly. I have Desire, Gratitude, Manifest. Very powerful cards coming out. Okay, so your person's current energies. I'm just going to pull out the cards first and then just let me begin with the reading. Just quickly take out the cards. Oh my gosh. Oh, wow. Bottom of the deck is Temperance. Okay, so definitely healing taking place for you, for your person, for the connection as well. I feel like you are seeing things on a deeper level now, dear one. If you pick this pile, because the bottom of the deck for another deck was Sacred Truth, right? And I also have Expansion. So beautiful energies. You might be feeling like very bitter right now. Okay, whatever life is showing you right now, whatever universe is showing you right now, you are not liking it. Your person is also not liking it. I'll be very clear, very honest, but it is bringing forward a phenomenal amount of reality to you. Okay, the reality of this connection, the truth of your person, the truth of yourself is coming forward, right? Coming forward, being shown to you. Again, I have bottom of the deck is Manipur Chakra, and the card that I pulled out is also Manipur. So your person is working with healing their solar plexus, with healing their sense of confidence, inner knowing, inner power, their decision making abilities, their sense of pride and sense of belonging is getting a big shift. It's getting a big push. Okay, because I have growth coming out, and this card could have flipped backwards, but it thankfully flipped
on its positive side. So I do feel like your person is taking in the lessons today that they need to learn about growing in their sense of self-confidence. And duck spirit, this is a duckling, but duck spirit is all about being very poised and calm above the water. When you see a duck, you cannot make out what is happening underneath the water. Okay, it seems to be very poised, very calm. Sometimes it might feel like you don't know what is happening with your person. They might seem like nothing is happening, they are not growing, they are not evolving, but under the water the duck is paddling really vigorously, really energetically. There's a lot going on under the water. So there are things moving in with your person. Okay, please trust that, because the cards that I'm receiving are pointing towards that fact that your person is gaining this maturity about this connection. Okay, your person is finally ready to face their scars. Everything that your person was hurt about in the past with regards to this connection, they are ready to heal those scars, they are ready to heal those wounds. I'm also feeling like your person is letting go of any parental wounds at this point of time as well. Okay, there have been some triggers which have brought up the pain within your person, and they might be triggering that to you. Okay, directly, indirectly, whether you are in communication or not, please take what resonates. I feel like you are in communication with your person if you have picked this pile. If you are not in communication, you are actively communicating telepathically with your person, and there is a certain triggering going on within the connection. It's like one twin flame feels like pulling away and the other person is chasing with their energy, trying to pull back. Universe may be showing you their names, their signs, they may be showing up in dreams, they're popping up everywhere, and you're feeling frustrated right now, but your person is manifesting you. Whenever you see signs about your person, please know that they are also manifesting you. It's not just you who wants to be in union with your divine counterpart, it's your counterpart wanting to be with you as well, right? And that there is the feminine, there is my feminine. She's just dancing her way into the heart of the masculine, and she has always belonged there. Please know that you have always belonged in the heart of your person, regardless of what the situation is, what the 3D is showing you, the kind of separation that is superficial, and it is giving you pain as well, but you both are growing from that pain. You are beautifully evolving. You need to come into your own sense of self-gratitude, and your person is learning to be more grateful for this connection. Okay, I do feel like your person is feeling very your person is feeling very magnetized towards you, dear feminine or masculine, please take what resonates. But your person, your twin flame, your divine counterpart is being drawn to you magnetically. They are so attracted to you, and they are feeling very, very thankful for having you in their life. Even though they might have triggered you, they might have shown you some darkness within themselves or within you. There is some mirroring going on, but I do feel like your person is truly, truly, genuinely grateful for having you in their lives, and they feel this desire for you. Okay, they want to be able to express their love physically. They want to sort of like hold your hand, or they want to take you out and spend time with you. They want to spend quality time with you. If you haven't had the opportunity of meeting your person in the physical realm very often, they are really desiring that, and this desire itself, the masculine's desire itself, is manifesting into this divine union, right? So your person today is working on their core wounding, they are working on their core issues, they are healing their inner sense of self-confidence. Probably one of the parents used to talk down a lot on your masculine or on your divine counterpart, and they created a version of themselves that was not true, right? That was not true, and all of the things that they were told about themselves, they started believing that they were that. But now they are recognizing that no, there is more to me. I know that that goodness is there, it's present within me, and I can be better. I want to be better for my divine counterpart. I want to come into this realization that all of these negative thoughts that I've been having, these depressive thoughts,
this frustration, this boredom that I find in my life because of the financial burdens that I'm carrying right now, I know that I need to resolve those issues. And in working on my wounding, I'm also coming into this realization that my feminine is my luck. She is my lady luck. If you are seeing ladybugs around a lot, your person is recognizing you today, that you are very, very lucky for them, right? And they are sending you ladybugs. Your divine counterpart might be sending you ladybirds or ladybugs today. And if you see the number 3333, this is also, and I'm seeing I have 3 viewers right now. So your person might be sending you a lot of threes or ladybirds to let you know that you are their luck. Without you, they, in their head space, in their thoughts, they know that they are nothing without you. Your person is saying, I am nothing without you, my love. You bring so much of joy, purity, happiness and luck to my life. It is unbelievable, and I am undergoing this transformation. I am learning how to be a better person by facing my suffering, by facing my pain, and by healing myself. In healing myself, I can come closer to you. I can have this new perspective of you and this connection, and come into this beautiful love. These are 2 cards that I received for your person's heart space. Okay, so for heart space, I received Death and Ace of Cups. So that's why I said, oh my god, it's like this is a very, very resurrective energy, beautiful divine push they are receiving from the universe. Okay, so if they have been in denial, if they have been running away from this connection, all of this desiring feeling is baby, can you please lower the volume, please? There's a lot of screaming going on. So yeah, so there's a lot of screaming passion I'm getting that they feel towards you, which is making them come into this realization that they do feel this love for you. They want to have this beautiful beginning in love, but they know that in order for this Ace of Cups to take place, first something in their current reality needs to end. This might be a karmic connection, this might be a job, this might be a boss that is probably holding them back, some sort of a karmic connection or a situation that they are in. This might be a person, this might be a situation, please take what resonates. But I feel like your person needs to end this karmic situation in order to come forward to you. They want to reunite with you, but somehow something is holding them back, and I feel like it is this this particular binding situation that they have in their life, which is very limiting, but divine is making way for that as well. They do want to, your person wants to come forward and meet you. There's a lot of meeting energy. They want to come forward and express all of the beautiful love and desire that they feel for you. They want to show you and offer you this cup of love that they hold within themselves for you. And it's like right now it's a secret. It's like bubbling. I'm seeing a lot of bubbles. So this love is going on, increasing day by day, and earlier they thought that they could get over you, but now they are recognizing that, oh no, this love is something that is going on, growing. I thought that I could move on. I thought that I could forget this person because nothing can happen, and there are many sorts of limitations to this, but they are finding that I cannot move on. It's like it's exactly the opposite of what I thought, right? So I'm growing in this love, and they're like keeping this love a secret. But look at the sea lion, so cute. It's like it's almost like very innocently they want to just come forward and express everything that they slow churn ice cream. Oh my god. This notification just came in and it said slow churn ice cream, which is a very specific kind of an ice cream. It's made after a long period of time. Okay, it takes a lot of time to make a slow churn ice cream. A lot of energy is involved, a lot of time is involved, a lot of patience is involved, okay, in this love, in this connection. And just like this ice cream, this love is slow churning within your person, right? But we all know that the taste of slow churn ice cream is beautiful. It has a beautiful consistency which just goes into the mouth and it just melts. You don't even need to roll your tongue, it will just melt, right? So it's very smooth and it's very
why am I talking about ice cream all of a sudden? Maybe your person wants to take you out for an ice cream, I guess, you know. So yeah, so that is coming across. But just like slow churn ice cream, your person is feeling this beautiful love growing up within them, this beautiful desire growing up within them, slowly. It's like growing, just like this beautiful white lotus. It's a symbol of purity. Like they know this connection is an intensely pure connection. It's something that they feel like it's a gift from divine, and that is why they want to protect this love even from themselves. That is why they stay back. That is why they don't allow themselves to get in touch with you very often. Right now they are working on their own wounding, and they know that they need to be better people so that they can come forward to you. I am healing my shadow side, right? So definitely I feel like there is a lot of purging. There's a lot of shadow that your person is facing. They are coming into their purity of essence, purity of being, knowing that they are also divine. I'm feeling that your person feels very responsible for everything that happened. They are holding themselves responsible, and they have accepted their darkness in the sense that they are dark. Like मैं तो ऐसा ही हूँ, मेरे में तो हैं ही कमियाँ, मैं बेकार इंसान हूँ, या मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ. इस तरीके की चीज़ें उनके मन में चल रही हैं, which are not necessarily good, because all of us hold a polarity within, right? That is what yang and yin is about. Within the darkness there it holds light, and within light there is the presence of darkness as well. So we carry both within. We carry darkness and we carry light. We carry our shadows and we have our good side as well, right? So they are learning how to work with their shadows. So this constant dialogue that I'm bad, I'm worthless, I'm good for nothing, I probably cannot get anything right, and that is why I need to stay away. They are healing those tendencies within. Our union is coming from 5D. Beautiful card coming in for the white lotus. Dear one, if you pick this lotus, please comment down below to claim your union. Please comment 222 if you pick this pile. Do you want me the way that I want you? I want you so badly. I am really ashamed sometimes, but I don't want you. I feel like I need you. I feel like I cannot breathe without you. I feel like I cannot exist one more single moment without you. And I know it sounds very ironical, because I do nothing about it, because somehow deep inside I feel like there is no future. That is why I stay where I am. But I am learning how to follow my intuition. I'm following my intuition. We will have a miracle very soon. When you forgive me, I can forgive myself. This is a very strong card that is coming up for the collective today. This is a collective message because it came up in the reel today. I have been seeing many different posts and reels which are connected to forgiveness, right? And forgiveness starts with self-forgiveness. Forgive yourself for putting trust into people who did not deserve to be trusted, investing in people where you were betrayed, probably you were not recognized, you were not loved. Okay, please forgive yourself today, because from this self-forgiveness you can learn to forgive others as well. When you forgive yourself, you can genuinely start forgiving your divine counterpart for everything that went down between both of you. And white lotus is significant of spirituality, of higher learning, higher knowledge, and higher consciousness of all, right? Because white represents purity, genuinity, and it is a very versatile color. And this connection is moving forward in the sense that your person is coming into their own sense of purity through you, through seeing how pure you are, how beautifully compassionate and unconditional in your love you are. They are also rising in their spiritual essence, and that is how your person is working through their core shadows and core wounds. I hope this reading resonated with you. Beautiful messages coming in for the white lotus, right? I'm picking in the pink lotus now. Okay, Rohan is asking, हाँ जी रोहन जी, क्या आप
लाइव नहीं कर सकते. आई एम डूइंग अ रीडिंग सेशन. आई एम नॉट जॉइनिंग एनीबडी एल्सेस लाइव राइट नाउ. ओके, दिस इज अ रीडिंग सेशन. आई वुड appreciate it if you can keep it professional. हाँ लग रहा है. ओके, बॉटम ऑफ द डेक इज मिस्चिफ. तो आपको आज आपके पर्सन से मिस्चिवियस एनर्जी फील हो रही होगी, या एक नॉटी एनर्जी जो है वो फील हो रही होगी. वो लाइटनेस चाहते हैं. आपके पर्सन आपके साथ में बहुत ही हंसना खेलना टाइप की एनर्जी है, वो एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं. एंड देर माइट बी अ नीड फॉर यू टू लाइटन अप इन द कनेक्शन. ओके, हो सकता है काफ़ी भारी चीज़ें हो रही, मुझे लग रहा है. बॉटम ऑफ द डे कम्युनिकेशन. योर पर्सन really wants to talk to you, they want to listen to your voice, they are telling you today please don't forget my voice, please don't forget me. आपके पर्सन बहुत अच्छा गाते हैं. अगर आपने पिंक लोटस चूज़ किया है, आपके पर्सन की आवाज़ बहुत प्यारी है, बहुत सुंदर है, बहुत ही डीप हीलिंग कैपेसिटी है आपके पर्सन की वॉइस में. या फिर आपके पर्सन बहुत प्यारा गाते हैं. दे आर वेरी गुड सिंगर्स, दे माइट बी प्रोफेशनल एट सिंगिंग. आपके पर्सन प्रोफेशनल होने का हुनर रखते हैं, बट उन्होंने वो एक्सप्लोर नहीं किया या नहीं कर पाए. हो सकता है इट इज़ अ पार्ट ऑफ देयर ओन सोल मिशन टू यूज़ देयर वॉइस टू हील पीपल, टू कनेक्ट विद पीपल, टू गिव देम गाइडेंस. ठीक है. और या योर पर्सन इज़ वांटिंग टू कम्युनिकेट विथ यू. दे आर टेलिंग यू प्लीज़ डोंट फॉरगेट माई वॉइस, प्लीज़ डोंट फॉरगेट अबाउट मी. शायद वो आपको बार बार सोशल मीडिया पे आते हुए देख रहे हैं, बट आप उनको रीच आउट नहीं कर रहे हैं. तो उनको ऐसा फील हो रहा है कि थोड़ा पनिशमेंट जैसा फील हो रहा है आपके पर्सन को, कि प्रॉबली आप शायद भूल ना गए हों उनको. राइट. द फर्स्ट कार्ड दैट आई रिसीव फॉर योर पर्सन, देयर करंट एनर्जी इज ट्रायल्स, अराउसल, डिवाइन लव, बॉडी कॉन्शियस, मैग्नेटिक, रिग्रेट एंड ओल्ड बिलीव्स. तो आपके पर्सन जो हैं वो आज पुरानी फैमिली की सिचुएशंस जो हैं उनको हील कर रहे हैं. उनके अपने परिवार में बहुत कुछ हुआ है पास्ट में. राइट. नाइंसाफ़ी वर्ड आ रहा है. तो हो सकता है कुछ ऐसी नाइंसाफ़ी हुई है आपके पर्सन के साथ में, उनके फैमिली की तरफ से. हो सकता है मदर के साइड से, हो सकता है फादर के साइड से, हो सकता है रिलेटिव्स के साइड से ऐसा कुछ हुआ है. कुछ नाइंसाफ़ी सी एनर्जी है जिससे आपके पर्सन मूव ऑन कर रहे हैं, उसको भूलना चाह रहे हैं, मूव ऑन करना चाह रहे हैं. ओल्ड बिलीव्स हैं और ये रिग्रेट एनर्जी है. शायद आपके पर्सन ने बहुत लोगों की मदद करी है. ठीक है, परिवारजनों की मदद करी है, बट उसके रिज़ल्ट में उनको वो एप्रिसिएशन नहीं मिला, क्रेडिट नहीं मिला, थैंक्स तक नहीं मिला. राइट. बट दैट डिवाइन इज सेइंग कि वो एक स्पिरिचुअल ट्रायल था, स्पिरिचुअल टेस्ट था. मेरे पर्सन बेस पे करते हैं. तो पर वो एक स्पिरिचुअल टेस्ट था, ट्रायल था. तो आपके पर्सन जो हैं वो समझ रहे हैं कि वो सब चीज़ें क्यों हुई पास्ट में. वो उन लोगों का असली रूप जो है वो उनको दिखाया जा रहा है. एंड उस चीज़ से काफ़ी पेन मिला आपके पर्सन को कि इतनी हेल्प करने के बावजूद, इतनी मदद करने के बावजूद, अनकंडीशनली उनको सपोर्ट देने के बावजूद कोई क्रेडिट नहीं मिला. बट उनका अपना जो रिग्रेट का जो वुंडिंग है वो ऊपर आ रहा है. राइट. क्योंकि उन्होंने डिवाइन लव में नहीं किया. वो जो उन्होंने मदद करी थी आपके पर्सन ने, उसमें कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन जुड़ी हुई थी. राइट. हिडन एक्सपेक्टेशन हो सकती है कि हाँ थैंक यू मिलेगा, क्रेडिट मिलेगा. तो डिवाइन उनको ये बता रहे हैं कि आप जो भी करो लव में करो, अपनी प्योरिटी, अपने एसेंस में आके करो, विदाउट एक्सपेक्टिंग एनी थैंक्स और विदाउट एक्सपेक्टिंग थिंग्स फ्रॉम द अदर पर्सन. आप मदद क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप मदद कर सकते हैं, क्योंकि ईश्वर ने आपको इतना सक्षम बनाया है कि आप किसी को ऊपर उठा सकें, किसी का हाथ थाम सकें, किसी का सहारा बन सकें, किसी के चेहरे पे मुस्कान ला सकें. ठीक है. तो हम डिवाइन का माध्यम बनते हैं.
जब हम किसी की मदद करते हैं तो हम अपने लिए मदद नहीं कर रहे हैं। अगर आपका कुछ उसमें अल्टीरियर मोटिव होगा तो उसमें आप देखेंगे रिजल्ट नहीं मिलेगा, वो फलेगा ही नहीं, क्योंकि इंटेंशन, वहाँ बेसिक इंटेंशन गलत होती है। और कभी कभार हम ऐसा नहीं मैं बोल रही हूँ कि आपके पर्सन अच्छे नहीं हैं, बट हम अपने आप को चीट कर लेते हैं कई बार, होल्डिंग दोज एक्सपेक्टेशंस, होल्डिंग दैट हिडन इंटेंशन। तो डिवाइन उनको ये इस सिचुएशन के थ्रू ये बता रहे हैं कि जब भी आपने मदद करनी है किसी की तो पूरे दिल से करनी है और ईश्वर का माध्यम बन के मदद करनी है। उसमें अहंकार नहीं रखना किसी तरीके का, उसमें मैं नहीं रखना कि मैंने मदद करी, मेरे से हुआ, मेरे साथ ऐसा किया, नहीं। ये बिल्कुल जैसे जैसे आपके हाथ में चोट लगी है, ठीक है, तो आपका राइट हैंड जो है वो लेफ्ट हैंड को पट्टी बांध रहा है, मलहम लगा रहा है, तो क्या राइट हैंड एक्सपेक्ट करता है लेफ्ट हैंड थैंक यू बोलेगा उसको? उस तरीके का हो जाता है, क्योंकि हर इंसान जिसकी भी मदद आप कर रहे हैं, जिससे भी आप जुड़े हैं अभी इस टाइम, वो इंसान आप ही का प्रतिबिंब है, वो आपसे जुड़ा हुआ है, आप ही का रिफ्लेक्शन है इस जीवन में, इस संसार में। तो हम जिस तरीके से मैंने ये छोटा सा एग्जांपल दिया उस तरीके से आप भी एक्सपेक्ट ना करें, और आपके पर्सन जो हैं वो रियलाइज़ कर रहे हैं कि देयर इज़ लेसन ऑफ ग्रेटर अनकंडीशनल लव फॉर योर पर्सन दैट इज़ कमिंग अप, ओके। और आपकी जब बात आती है तो ये कनेक्शन जो है उनको बहुत टेस्ट कर रहा है, काफ़ी ट्रिगर कर रहा है अभी इस टाइम। हो सकता है आप दोनों में थोड़ी दूरी हो, बट इस दूरी से जो है प्यार में मिठास आ रही है। आप ऐसा ना सोचें कि सेपरेशन में है हम दोनों, आप दोनों सेपरेशन में नहीं हैं, आप दोनों केवल अभी अपने आप को जान रहे हैं, अपने आप को रियलाइज़ कर रहे हैं, रिकग्नाइज़ कर रहे हैं, एंड अपने अंदर जो हैं वो एक सहज भाव लेकर आ रहे हैं एक दूसरे के प्रति, राइट। एंड मेरे बैकग्राउंड में भी पिंक लोटस है, तो पिंक लोटस अगेन रिप्रेजेंट्स प्योर लव, प्योरिटी इन लव, प्योरिटी इन अफेक्शन, प्योरिटी इन कंपैशन एंड एडोरेशन। तो हार्ट चक्रा से रिलेटेड एनर्जीज़ हैं। तो आपके पर्सन अभी इस टाइम आपसे अलग हैं, आपसे शायद बातें नहीं हो रही हैं, देयर इज़ नो कम्युनिकेशन आई फील, बट आपके पर्सन जो हैं अभी इस टाइम बहुत ही स्वीट फीलिंग्स उनके मन में जागरूक हो रही हैं आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए। और उनको बहुत भारी लग रहा है अभी ये जो दूरी है, उनको ऐसा लग रहा है बहुत बड़ा टेस्ट हो रहा है, जैसे डिवाइन उनसे एक बहुत बड़ा टेस्ट ले रहे हैं और ले ही रहे हैं, क्योंकि उनकी अपनी जो एक कनेक्ट करने की जो एक कैपेसिटी थी पास्ट में, ये अराउजल का कार्ड है विच इज़ सेक्सुअल डिज़ायर अगेन। तो आपके पर्सन डिज़ायर कर रहे हैं आपको, आपको नीड कर रहे हैं, क्रेविंग हो रही है आपके लिए उनको। हो सकता है पास्ट में आप शायद फिज़िकली क्लोज हुए हों अपने पर्सन के साथ में, बट आज वो रिकग्नाइज़ कर रहे हैं कि उस क्लोजनेस में भी एक प्योरिटी मिसिंग थी, एक स्वीटनेस मिसिंग थी, राइट। एंड आई एम नॉट सेइंग कि वो किसी तरीके से प्रेम अधूरा था, पर वो प्रेम में कहीं ना कहीं डिवाइन का जो एसेंस है वो लैकिंग था उस फिज़िकल क्लोजनेस में, और वो चीज़ अब वो उसको वैल्यू कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है पास्ट में जो भी कनेक्शन आपका बना था, जो आपकी इंटीमेसी थी, उस चीज़ को आज वो शायद, मुझे ऐसा लग रहा है वो 1000 से 2000 गुना उस चीज़ को वैल्यू करते हैं। आपका एक छोटा सा टच, आपका एक छोटा सा इशारा बहुत बहुत मायने रख रहा है उनके लिए अब, और वो रिकग्नाइज़ कर रहे हैं कि ये सब क्यों हुआ। उन्होंने बहुत हार्ड लेसन्स फेस करे हैं, आपके पर्सन ने बहुत टफ लेसन्स देखे हैं आपसे सेपरेशन में आने के बाद में। और आज आपके पर्सन के मन में कहीं ना कहीं डाउट आ रहा होगा, या तो आपके पर्सन के मन में आज डाउट आ रहा है कि हो सकता है शायद आप उनको अट्रैक्टिव ना पाएँ, या उनको खुद में थोड़ी सी कमी फील हो रही है कि अपने बॉडी को लेकर शायद कॉन्शियस हो रहे हैं, या अपने लुक्स को लेकर कॉन्शियस हो रहे हैं, क्योंकि वो आपको राइज करता हुआ देख रहे हैं, ग्रो करता हुआ देख रहे हैं, स्पिरिचुअली इवॉल्व करता हुआ देख रहे हैं। आप असेंड कर रहे हैं, आपकी एनर्जीज लाइट होती जा रही हैं, एलिवेट होती जा रही हैं। तो आपको देख के उनको ऐसा लग रहा है कि कहीं अपने आप में कम महसूस कर रहे हैं। तो दे आर वर्किंग इंटरनली
अपना इनर वर्क कर रहे हैं, बट आउटर में भी उनको ऐसा लग रहा है अरे मुझे अपना थोड़ा शायद ध्यान रखना चाहिए, या मुझे अपने लुक्स पे थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। कुछ आपके पर्सन जो है मुझे लग रहा है कुछ चेंज लेकर आ रहे हैं अपने हेयर स्टाइल या अपने फेशियल हेयर को लेकर या अपने ड्रेसिंग सेंस को लेकर, शायद कुछ अपने अंदर एक नया परिवर्तन लेकर आ रहे हैं। उनका स्टाइल शायद चेंज हो रहा है, अपने आप को ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए वो ऐसा कर रहे हैं शायद, राइट। एंड अपने इनर फेमिनिन के साथ में आपके पर्सन कनेक्ट कर रहे हैं। अभी तक वो भाग रहे थे अपनी फीलिंग से, अपनी इंट्यूशन से, बट ये पिंक लोटस मुझे बता रहा है आज आपके पर्सन जो है अपनी इनर फेमिनिन जो है वो कैपेसिटी को हील कर रहे हैं और अपने लव में, अपने इनर इंट्यूशन के साथ में वेल कनेक्टेड हो रहे हैं आज, राइट। एंड वो बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं आपको देखते ही वो बैलेंस्ड फील करते हैं, वो एट होम महसूस कर रहे हैं। डियर फेमिनिन, मोस्ट प्रॉबली आप फेमिनिन हैं अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो अगर आपने ये पाइल पिक करी है तो आपके पर्सन अपनी मैस्कुलिन एनर्जीज़ में हैं, बट वो अपने इनर फेमिनिन को हील कर रहे हैं अभी इस टाइम। अपनी इनर फीलिंग्स को वैल्यू कर रहे हैं, चेरिश कर रहे हैं, क्योंकि जहाँ पे उन्होंने एनर्जीज़ डाली पास्ट में अपने फैमिली के तरफ या अपने कामिक सिचुएशनशिप के तरफ, वहाँ से उनको वो चीज़ें नहीं मिली जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो आपने उनको डिवाइन लव दिया है। जस्ट सी द स्टार्क डिफरेंस, ये ब्लैक एंड वाइट, ये आफ्टर सेपरेशन, और ये आपके साथ में ये एनर्जी थी, ब्यूटिफुल वाइब्रेंट रेड रोज शोइंग अप, राइट। तो आपके साथ में उन्होंने डिवाइन लव का एक्सपीरियंस किया और आपसे दूर जाने के बाद में दे फेल्ट वेरी ब्रोकन, बहुत ब्रोकन महसूस कर रहे थे आपके पर्सन, राइट। सो आपके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है अभी आपको लेकर, आपकी कनेक्शन को लेकर। नाइट ऑफ डिशेस, ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स आया है। तो आपके पर्सन आज अपनी कमिटमेंट एनर्जी में आ रहे हैं धीरे धीरे करके। जैसे उनका ट्रस्ट ग्रो कर रहा है ना अपने खुद के तरफ, वैसे आपके तरफ भी ट्रस्ट जो है वो और स्ट्रॉन्ग होता चला जा रहा है। उनको बहुत विश्वास आ रहा है आप पे, क्योंकि आपने बहुत संभाला है। आपने अपने पर्सन को उनके ख़राब समय में बहुत बहुत संभाला है, एंड वो सब, उस सपोर्ट ने उनके अंदर एक बहुत पॉजिटिव चेंज लाया है। उस सपोर्ट ने उनके अंदर एक बहुत ही, उनके अंदर की ना जैसे स्ट्रेंथ वापस आई हो, उनके अंदर की वैल्यू वापस उनको पता पड़ी कि हाँ मतलब मैं भी कुछ हूँ। डियर मैस्कुलिन्स, या दे हैव बीन थ्रू अ लॉट, राइट। एंड वो चाहते हैं आपके साथ में आके सेलिब्रेट करें, आपके साथ में कमिटमेंट में आए। ये एक मैरिज का कार्ड है, क्विंटेसेंशियल ट्विन फ्लेम कार्ड भी है, बिकॉज 11-11 है इसमें। तो 4 ऑफ वॉन्ड्स हमेशा ये बताता है कि अपनी एनर्जीज़ को स्टेबलाइज करना चाह रहे हैं अभी इस टाइम। उनको पता है कि अगर वो इस कनेक्शन में आगे बढ़ना चाह रहे हैं आपके साथ में, तो उनको अपने अंदर कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे, अपनी सोच में चेंज लाना पड़ेगा, राइट। आपके पर्सन पुरानी मोमेंट्स को सोच करके बहुत हैवी फील कर रहे हैं आज, बहुत ही हैवी एनर्जी है, ये उनकी फीलिंग्स हैं आज आपके पर्सन की। 6 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स, तो बहुत भारी महसूस कर रहे हैं, अपने आप को रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहे हैं। मैंने बोला ना आपको कि अपने आप को रिस्पॉन्सिबल होल्ड कर रहे हैं आपके पर्सन के, सब मेरी वजह से हुआ, मैंने सब ख़राब कर दिया, डिवाइन ने मुझे इतना प्यारा कनेक्शन दिया था और उसके बावजूद मैंने उसको संजो के नहीं रखा, उसको संभाल नहीं पाया मैं या पाई मैं। वो बहुत ही स्पॉन्टेनियस एनर्जी में है आज, अपने हार्ट चक्रा में है आपके पर्सन। वो आकर खुल के आपसे शेयर करना चाह रहे हैं कि पास्ट में जो भी आपने उनको दिया, या जो भी सपोर्ट या प्यार या फाइनेंशियल सपोर्ट भी शायद आप में से कुछ लोगों ने अपने पर्सन को दिया है, तो आपके पर्सन को बहुत वैल्यू कर रहे हैं। और अचानक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अचानक से आकर आपको वो ढेर सारा प्यार, ढेर सारा थैंक्स देना चाह रहे हैं तहे दिल से। बहुत 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 एक ब्यूटीफुल एनर्जी है आपके पर्सन की तरफ से मुझे फील हो रही है। लाइटनेस है, पास्ट को लेकर लेसन्स रियलाइज़ कर रहे हैं वो,
जो भी मिस्टेक्स करी उन्होंने आपके साथ में पास्ट में, उसको करेक्ट करना चाह रहे हैं आपके पर्सन। और उनकी 3D रियलिटी में अभी कुछ तो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, 5 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी है, कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, कुछ उनको रेजिस्टेंस मिल रहा है, आगे बढ़ना चाह रहे हैं पर एनर्जीज उनको पीछे खींच रही हैं, या डिवाइन की तरफ से उनको अभी ग्रीन सिग्नल नहीं मिला है। कुछ एक नया वेंचर है जो आपके पर्सन स्टार्ट करना चाह रहे हैं, राइट। बट बहुत मेहनत करने के बाद भी शायद वो अंत में आते आते ना हो जाती है, या वो डील जो है फाइनलाइज नहीं हो पा रही है। और ऐसा शायद पिछले 5 महीनों या शायद पिछले 5 हफ्तों से चल रहा है, एंड दैट इज़ पुटिंग अ लॉट ऑफ प्रेशर, लॉट ऑफ स्ट्रेस ऑन योर पर्सन, क्योंकि 2 ऑफ वॉक्स की एनर्जी है, तो 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। वो कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्या गलत हो रहा है, मैं कहाँ पे लैक कर रहा हूँ, चीज़ें क्यों आगे नहीं बढ़ पा रही हैं, इतनी मेहनत करने के बावजूद जो है मुझे रिज़ल्ट क्यों नहीं मिल रहा है। बट जब तक वो डिवाइन लव के साथ में नहीं चलेंगे, जब तक वो अनकंडीशनल लव में नहीं आएंगे, तब तक में ये ट्रायल्स जो हैं वो उनको सिखा रहे हैं। डिवाइन का तरीका है ये उनको सही राह, सही मार्ग पे लाने का, अपने फेमिनिन की तरफ आगे बढ़ने का जो रास्ता जो है उनको दिखाया जा रहा है। और आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं आज? इट्स टाइम फॉर अ रियूनियन। तो मिलने की एनर्जी है डेफिनेटली। प्लीज़ क्लेम दिस ब्यूटिफुल मैसेजेस कमिंग अक्रॉस फ्रॉम योर पर्सन। इफ़ यू हैव पिक दिस पाइल विद दिस पिंक लोटस, प्लीज़ comment 2222 in the comments down below to claim this beautiful energy. This is coming out from your person. I'm always writing messages that I never send. So communication की energy भी है यहाँ पे, bottom of the deck कार्ड आया था communication का। So your person will very soon, I feel like ये सब जो कार्ड्स आ रहे हैं ना, यहाँ पे स्पॉन्टेनियस कार्ड भी आया था, स्पॉन्टेनियसली रीच आउट करेंगे आपको, ठीक है। तो आप अपने में मस्त रहिए, अपने आप में खुश रहिए। प्लीज़ मेक टाइम ऑफ योर प्लीज़ मेक गुड यूज़ ऑफ़ योर टाइम। अपना टाइम जो है सर्विस में डालें, लोगों को हेल्प करने में लगाएं। आपका जो सोल पर्पस है उस तरफ आप काम करेंगे, अपने पैशंस की तरफ वर्क करेंगे, तो आप अपनी हैप्पी एनर्जी में रहेंगे। और जब आप फॉरगिवनेस देंगे अपने पर्सन को, तो all of a sudden you might expect communication from them, okay, because they are wanting to communicate with you, right? It's time for a reunion. I'm healing the abandonment wound. तो पास्ट में हो सकता है आपके पर्सन को धोखा मिला हो, आई एम सॉरी, धोखा नहीं, पास्ट में आपके पर्सन को कोई छोड़ के चला गया, उनकी एक्स या उनकी कार्मिक सिचुएशन जो भी थी, या उनकी कार्मिक रिलेशनशिप में जो भी उनके साथ में था, उनको शायद छोड़ के गया है, ठीक है। और उस सिचुएशन ने उनके अंदर एक अबैंडनमेंट वूंड जो है वो ऊपर लेकर आया है, फीलिंग लेफ्ट आउट, कि मैं शायद प्यार के लायक नहीं हूँ। उस वुंडिंग को वो आज हील कर रहे हैं। And I am facing my truth. I am facing the truth about this beautiful love that I feel for you. I want to come forward and marry you. I want to propose to you. I want to tell you how much you mean to me, what is the value you have brought into my life, because I feel this beautiful, genuine affection between us. Beautiful. बहुत ही प्यारी एनर्जी सेकेंड पाइल की भी। If you pick this pile, please comment down below if it resonated with you. All right. लास्ट फाइल है ब्लू लोटस। अगर आपने ब्लू लोटस पिक किया है तो आइए देखते हैं व्हाट इज़ हैपनिंग विथ योर पर्सन। आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं, उनके थॉट्स, उनकी फीलिंग्स एंड उनकी करंट रियलिटी में क्या चल रहा है, प्लस उनके मैसेजेस आपके लिए। ओह माय गॉड, ब्लू निकला, दोनों में ब्लू आया है। तो योर पर्सन इज़ वेरी क्लोजली वर्किंग विथ देयर थ्रोट चक्रा, ठीक है। तो कई सारी बातें हैं जो आपके साथ में शेयर करना चाह रहे हैं, कई सारे थॉट्स हैं जो आपके साथ में वो कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। उनका एक्सपीरियंस क्या रहा है आपके साथ में इस कनेक्शन में रहकर, वो आपके साथ में बताना चाह रहे हैं, शेयर करना चाह रहे हैं। बट राइट नाउ दे आर वर्किंग ऑन देयर थ्रोट चक्रा, ऑन हीलिंग देयर थ्रोट चक्रा।
What is your person's current energies? हाँ, that's okay. That's fine. Even if you mention it here, that's also fine. But yeah, I speak this for the YouTube video as well. Right? That's okay. Everything's good. Everything's fine. Right. Person की current energies क्या है? बहुत सारे कार्ड्स निकल रहे हैं. सीक्रेट ट्रूथ. ठीक है, तो आपके पर्सन को पता है कि वो एक डिवाइन कनेक्शन में है आपके साथ. तो उनको पता है आप दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एनर्जीज से हैं, या कुछ तो ऐसा है उनको पता है ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ये एक हायर लेवल कनेक्शन है. आपके पर्सन जानते हैं. बॉटम ऑफ द डेक इन दिस पाइल इज डिसिप्लिन. ठीक है, तो आपके पर्सन बेहतर डिसिप्लिन में आ रहे हैं. आपके पर्सन अपनी इनर मैस्कुलिन एनर्जीज पे काम कर रहे हैं. ऑल्सो दिस ब्लू लोटस कम्युनिकेशन थ्रोट चक्रा जो है वो मैस्कुलिन है. तो योर पर्सन इज़ वर्किंग टू कम इन टू द डिवाइन मैस्कुलिन कैपेसिटी पूरी तरीके से. राइट, कंटेंटमेंट आया है पहला कार्ड. ठीक है, तो आपके पर्सन शायद एक फैमिली सिचुएशन में है, या कोई एक ऐसा उनका कामिक स्ट्रक्चर है जिसमें वो थोड़ा सा कंफ्यूज्ड फील कर रहे हैं अभी इस टाइम. ठीक है, तो उनको जो भी सिचुएशन में है अभी, वो जो भी स्थिति में है, उनको कंटेंटमेंट नहीं मिल पा रहा है, उनको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पा रहा है, समझ नहीं आ रहा है कि क्यों ऐसा हो रहा है. और आपको बहुत एडमायर कर रहे हैं वो. आपको दूर से एक एडमिरेशन एनर्जी, लविंग एनर्जी भेज रहे हैं आपके पर्सन. बिकॉज उनको पता है कि ये कनेक्शन बहुत ही प्योर है, डिवाइन कनेक्शन है, हायर लेवल कनेक्शन है. जैसे मैंने बोला, वो रिकग्नाइज़ कर रहे हैं, डिवाइन उनको दिखा रहे हैं. जिस तरीके के मैसेजेस, जिस तरीके के साइंस वो देख रहे हैं, शायद हो सकता है कोई पर्टिकुलर देवी या देवता के बारे में उनको दिखाया जा रहा है. ड्रीम्स में आ रहे हैं वो, गॉडेस या गॉड उनको ड्रीम में दिखाई दे रहा है. बार बार उस मंदिर का, कोई एक पर्टिकुलर मंदिर है, मुझे ऐसा लग रहा है वेस्टर्न इंडिया में या फिर सेंट्रल इंडिया में कोई ऐसा मंदिर है जिसके बारे में उनको सपने आ रहे हैं, जिनका नाम बार बार उनको बताया जा रहा है. और जब वो उस गॉड या गॉडेस से रिलेटेड साइन देखते हैं तो उसके साथ ही साथ आपका साइन आ रहा है. मतलब कि मैं कैसे एक्सप्लेन करूं, जैसे मान लीजिए एक मंदिर हम ले लेते हैं, महाकालेश्वर. तो महाकालेश्वर जी अगर उनको बार बार अपने इंस्टाग्राम में या अपने फेसबुक में उनको फ़ोटो दिखाई जा रही है या आरती दिखाई जा रही है, तो नेक्स्ट स्लाइड जैसे वो देखते हैं तो शायद उनको आपका नाम दिखता है, या आपका इनिशियल दिख रहा है, या आपकी बर्थ डेट दिख रही है. तो बहुत ही क्लोज कनेक्शंस, क्लोजली कनेक्टेड साइंस दिख रहे हैं आपके पर्सन को. बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है. ओके, सो ये हो रहा है आपके पर्सन के साथ में, तभी वो रिलेट कर पा रहे हैं कि आपके साथ में जो उनका रिश्ता है वो एक स्पिरिचुअल, बहुत ही हाई लेवल कनेक्शन है. वो उनको ऑलरेडी रियलाइज हो रहा है, क्योंकि ये दोनों कार्ड्स जो हैं, यू कैन सी हाउ सिमिलर दे आर इन देयर एनर्जीज ऑल्सो. तो वो ये कनेक्शन की जो प्योरिटी है वो समझ पा रहे हैं कि बातें ना होने के बावजूद, ना मिलने के बावजूद भी कॉन्स्टेंटली जो है आपकी याद उनके साथ में है, आपकी प्रेजेंस जो है, आपकी एनर्जीज शायद वो फील कर रहे हैं ऑल द टाइम. एंड आपके पर्सन एक बहुत ही डीप मेटामॉर्फोसिस के टाइम में है, चेंज के अंडरगो कर रहे हैं. अभी उनकी करंट सिचुएशन उनको बहुत ही अनकंफर्टेबल लग रही है, बहुत ही स्टक और बाउंड फील कर रहे हैं आपके पर्सन अपनी करंट सिचुएशन में. हो सकता है काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थोपी गई हों और वो कन्फ्यूजन में है. कोई ना कोई उनको कन्फ्यूजन में डाल रहा है बार बार आपके पर्सन को. इसीलिए उनको डिवाइन की तरफ से इतने साइंस भी दिख रहे हैं, उनको क्लैरिटी मिल रही है कि यू डोंट नीड टू बी इन योर माइंड. ठीक है, टेक इट स्टेप बाय स्टेप. तो आपके पर्सन एक बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी में है अभी इस वक्त. वो आगे आना चाहते हैं. मूवमेंट का कार्ड है जो रिवर्स में आया है. जैसे मैंने बोला, स्टकनेस फील कर रहे हैं, एक ही जगह में स्टक फील कर रहे हैं. वो हो सकता है आपके साथ में आना चाह रहे हैं. महाकालेश्वर, महाकाल, यस द सेम सेम है. तो आपके सामने आपको
आपको अप्रोच करना चाह रहे हैं आपके पर्सन, बट वो कहीं ना कहीं स्टक फील कर रहे हैं अपनी सिचुएशन में। हो सकता है कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हों, हो सकता है कुछ मॉरल फैक्टर्स हों, हो सकता है उनका कॉन्शियस अलाउ नहीं कर रहा है अभी इस टाइम वो आगे स्टेप लेने में। सो प्लीज़ ट्रस्ट योर मैस्कुलिन, ओके, प्लीज़ ट्रस्ट योर पर्सन कि वो सही समय पे आगे आएंगे आपके सामने, बिकॉज योर पर्सन इज़ वेरी लॉयल टू यू। माई गॉड, डेफिनेटली आई एम फीलिंग आपके पर्सन मैरिड हैं, आपके पर्सन की एक फैमिली है शायद, राइट, एंड दे आर ऑनरिंग देयर कमिटमेंट्स, दे आर ऑनरिंग देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ राइट नाउ। बट स्पिरिट मुझे ये बोल रहा है कि वो आपके साथ में पूरी तरीके से लॉयल हैं, ओके, उस रिलेशनशिप में होने के बावजूद भी दे आर लॉयल टू यू बिकॉज दे रिकग्नाइज दिस इज़ अ स्पिरिचुअल कनेक्शन एंड देर इज़ अ बॉन्ड दैट दे शेयर विथ यू विच इज़ फ्रॉम अ पास्ट लाइफ, which is a very very spiritual nature, which is very very spiritual in nature। और वो आके एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं। सारे ही पाइल्स में सेक्रल चक्रा एक्टिवेटेड है, तो आपके पर्सन जो मैस्कुलिन कलेक्टिव है प्रॉबेबली दे आर वर्किंग विद देयर सेक्रल चक्रा, ठीक है। दे आर फीलिंग दैट लॉन्गिंग, इंटेंसिटी, डिज़ायर टू कनेक्ट फिजिकली विद देयर फेमिनिन। तो आगे आके एक्सप्रेस करना चाहते हैं जो भी कुछ वार्मथ, जो भी पैशनेट एनर्जी है, जो फील कर आपकी तरफ, वो सामने आके आपसे एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, राइट। सो माइंड तो आपके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है अभी? 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ स्पून्स। तो आपके पर्सन बहुत ही रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, बहुत ही रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल हैं। ही और शी, प्लीज टेक व्हाट रेजोनेट्स, बट वो एक बहुत ही अच्छी पोजीशन में है अपने काम में। आई एम फीलिंग लाइक वेरी CEO वाइब्स आई एम गेटिंग फ्रॉम योर पर्सन। दे हैव मैनी पीपल वर्किंग अंडर देम। लीडर पोटेंशियल है आपके पर्सन में, राइट, एंड बहुत ही इंस्पायरिंग है। आपके पर्सन की एनर्जी बहुत ही अपलिफ्टिंग, पॉजिटिव और मोटिवेटिंग है। जो भी लोग आपके पर्सन के कनेक्शन में आते हैं वो इंस्पायर्ड फील करते हैं, मोटिवेटेड एंड पैशनेट फील करते हैं, और आपके पर्सन में लोगों को इंस्पायर करने की एक बहुत ही उम्दा कला है, विच इज़ अ गॉड गिफ्ट आई फील। एंड आपके पर्सन बहुत रिस्पॉन्सिबल है, सबको साथ में इकट्ठा लेके चलते हैं। ही कैरीज ट्रू लीडरशिप कैपेसिटीज़ विद इन हिम, ओके, डिवाइन मैस्कुलिन कैपेसिटीज़ विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स कमिंग अप। एंड कोई भी सिचुएशन है, आपके पर्सन में ऐसी कैपेसिटीज़ हैं कि बुरी से बुरी स्थिति को भी वो अपने फेवर में टर्न कर देते हैं, राइट। तो वो पॉजिटिव कैपेसिटीज़ हैं आपके पर्सन में, और वो आगे आके कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं आपसे। वो बस चाहते हैं कि मतलब तुरंत आके आपसे मिलें, आपके साथ में बैठ के बातें करें। दे वॉन्ट टू कम फॉरवर्ड एंड टेल यू हाउ मच दे लव यू, हाउ मच इम्पॉर्टेंट यू आर फॉर देम इन देयर लाइफ, राइट। ये उनके माइंड में चल रहा है। एंड फीलिंग्स में किंग ऑफ कप्स है, oh my god, 2 kings in 1 reading, my gosh, definitely your person is stepping into their divine masculine capacities with the king of wands, king of cups. It's like done done, khatam, finish, kalas, tata, bye। क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी फायर एलिमेंट है और किंग ऑफ कप्स की एनर्जी वाटर एलिमेंट है। तो अपने अंदर की डिवाइन मैस्कुलिन फेमिनिन कैपेसिटीज़ को बैलेंस कर रहे हैं बहुत ही प्यारे तरीके से। बैलेंस के कार्ड्स बार बार आ रहे हैं, तो दे आर कमिंग इनटू देयर इनर बैलेंस विद इन थाट्स एंड फीलिंग्स, ओके। और आपके पर्सन वर्क करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, वो अपने आप को बेहतर बनाना चाहते हैं आपके लिए, dear feminine, right? So they are coming into their king of cups energy. They want to come forward and show you this beautiful love,
बट अभी करंट रियलिटी में उनके जस्टिस कार्ड एंड हर्मिट कार्ड आया है। उनको पता है कि कुछ लीगैलिटीज़ हैं जिनका ध्यान रखने की ज़रूरत है उनको अभी इस टाइम। लीगल इश्यूज़ की वजह से वो शायद आगे नहीं आ पा रहे हैं, या उनको ऐसा लग रहा है देयर वुड बी सम सॉर्ट ऑफ अ कार्मिक इनजस्टिस राइट नाउ। अगर वो आपके सामने आते हैं तो अपनी सिचुएशन को पहले ठीक तरीके से वो अलाइन करना चाहते हैं, एक बेस बनाना चाहते हैं अपनी लाइफ में। आपको वेलकम करने के लिए अपनी लाइफ में उनको कुछ चीज़ों का, कुछ सिचुएशंस का, कुछ व्यक्तियों को लेट गो करना पड़ेगा पहले टू मेक स्पेस फॉर यू इन देयर लाइफ। दे हैव टू लेट गो ऑफ सम ओल्ड कनेक्शंस एंड सम ओल्ड सिचुएशंस जिस पे वो अभी फोकस कर रहे हैं। एंड अभी इस टाइम जो है उनके अंदर का जो विस्डम है वो इनिशिएट हो रहा है, एक्टिवेट हो रहा है। जो भी स्थिति है उनके आसपास उनको बहुत वाइज बना रही है, उनके अंदर एक अलग तरीके का एक्सपीरियंस लेकर आ रही है। ठीक है, तो आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं आज? व्हाट आर योर मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन? मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन, बहुत कुछ बोलना चाह रहे हैं। ओ माय गॉड, ओके, आई विल टेक ऑल ऑफ देम। बहुत सारे मैसेजेस आए हैं। ऑलराइट, our separation is for our own growth. Reminders are in every song, in every movie. तो बार बार आपके बारे में साइंस मिल रहे हैं, जैसे मैंने बोला कन्फर्मेशन है, थैंक यू। तो ये बहुत बड़ा कन्फर्मेशन है कि आपके बारे में बार बार साइंस दिख रहे हैं उनको। एंड आई हैव वर्क थ्रू माई कोर वूंड्स, तो अपने कोर वूंडिंग के ऊपर काम कर रहे हैं। आई एम इंटिमिडेटेड बाय योर ऑसमनेस, बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड फील करते हैं वो आपसे। आई नो दैट यू एंड आई आर डेस्टिन्ड। आई एम मैनिफेस्टिंग फिजिकल अबंडेंस टू शेयर विथ यू। आई एम चेंजिंग माई फिजिकल वर्ल्ड। तो जैसे कि मैंने बोला कि अपनी रियलिटी में उनको कुछ लेट गो करने की ज़रूरत है। पुराने स्थिति, पुराने रिलेशनशिप्स जो उनको सर्व नहीं कर रहे हैं वो क्रम्बल हो रहे हैं, ब्रेक डाउन हो रहे हैं, कार्मिक डिसोल्यूशन हो रहा है उनके रिलेशनशिप्स का। तो दे आर चेंजिंग देयर फिजिकल वर्ल्ड कॉन्शियसली एज वेल। आई हिड माई फीलिंग्स बैक देन। तो जो फीलिंग्स जो थी उनके मन में आपके लिए, आपके प्रति या इस कनेक्शन के प्रति उन्होंने छुपाई थी। हो सकता है कुछ छोटा मोटा झूठ भी बोला हुआ हो उन्होंने आपसे, पर अब उनको उस चीज़ का पछतावा हो रहा है, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि अब वो चीज़ अंदर नहीं रख पा रहे हैं, उनको बाहर बोलनी ही पड़ेगी। और वो बोलना चाहते भी हैं, बट अब उनको लगता है कि वो झूठे साबित हो जाएंगे या किस तरीके से, किस मुंह से आपके सामने आएंगे। तो वो सब चीज़ों को सोच के थोड़ा सा परेशान हो रहे हैं, क्योंकि पास्ट में उन्होंने आपसे उनके दिल की बातें जो है वो छुपाई थी। राइट, दे हिड देयर फीलिंग्स बैक देन। Right, so this is what is coming across for you. If you resonated with this reading, please type 777 in the comments down below to claim this beautiful energy from your person. I really feel like वो बहुत जल्दी बात करेंगे आपसे, बहुत जल्दी कम्युनिकेट करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत ही इंटेंस लॉन्गिंग और इंटेंस एनर्जी फील कर रहे हैं आपके पर्सन। If you resonated with this reading, kindly hit the like, share and subscribe button. Please make sure that you hit the bell icon so that हर बार जब मैं नया वीडियो पोस्ट करूँ तो आपको पता पड़े, सो दैट यू डोंट मिस अनदर वीडियो। आई रियली होप यू एन्जॉयड द सेशन। आई लव यू सो मच। टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड। मीनाक्षी जी कुछ लिख रहे हैं। डियर, वांटेड टू आस्क वन थिंग, कैन दिस हैपन दैट द मैन यू लव व्हेन यू डोंट टॉक टू, देन नाउ ड्यू टू थर्ड पार्टी एंड नाउ we have this memory and getting faded and want to somewhere release him, and it seems that I want to move forward and I look for other options. Yes, it's a natural part of the process, Meenakshi ji. Wanting to move on, wanting to be happy, these are very natural feelings. Please allow them. Please don't hold anything against yourself. Please don't hold anything against your person also. Kyunki ask what God wants for you. Whenever confusion comes in, बस ये पूछें कि गॉड आपके लिए क्या चाहते हैं। गॉड आपके लिए बेस्ट चाहते हैं। वो चाहते हैं आप खुश हों, वो चाहते हैं आप एक ब्यूटीफुल लविंग रिलेशनशिप में हों, आपको दुनिया की सारी खुशियाँ मिले। बट अड़चन कहाँ आ रही है, हम लैक कहाँ कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम इंटरनली फील करते हैं कि हम वो सब चीज़ें डिज़र्व नहीं करते हैं। ठीक है, तो वी ओनली नीड टू बी वर्किंग ऑन आवर ओन सेल्फ हीलिंग, और उसी प्रोसेस में वो सब चीज़ें जो आपके लिए अलाइंड हैं, जो आपके लिए मेंट हैं, जो आपके लिए ऑलरेडी गॉड ने डिसाइड करके रखी हैं, वो आएंगी, वो अपने आप ही आएंगी, वो कहीं नहीं जाएंगी।
जो चीज़ आपके लिए बनी है, जो व्यक्ति आपके लिए बना है, वो आपके पास ही आएगा, वो कहीं नहीं जाएगा। इस विश्वास के साथ में अगर आप आगे बढ़ते हैं तो ये जर्नी आपके लिए बहुत ही सरल बन जाएगी, बहुत ही लाइट बन जाएगी। आपको मज़ा आने लगेगा इस जर्नी में भी, बिकॉज यू हैव ट्रस्ट इन डिवाइन, बिकॉज you have faith in divine, right? So I hope this reading resonated with you. Take care. I love you so much. Bye bye.